Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 46 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from Cat 21 slot 2 paper and the set says, the game of Chango is a game where two people play against each other. One of them wins and the other loses. That is to say, there are no drawn Chango games. 12 players participated in a Chango championship. They were divided into four groups. Group A consisted of Aruna, Azul, and Arif. Group B consisted of Brinda, Biju, and Bridge. Group C consisted of Chitra, Chetan, and Chavi. Group D consisted of Dipen, Dona, and Dev. Players within each group had a distinct rank going into the championship. The players have not been listed necessarily according to their ranks. In the group stage of the game, the second and the third ranked player plays against each other, and the winner of that game plays against the first ranked player of the group. The winner of these second game is considered as the winner of the group and enters the semi-final. The winner from Group A and Group B plays against each other in the semi-final, while the winner of Group C and D play against each other in the other semi-final. The winner of these two semi-final play against each other in the final to decide the winner of the championship. It is known that Chitra did not win the championship, Aruna did not play against Arif, Bridge did not play against Brinda, Aruna, Bridge, Biju, Chitra and Dipen played 3 games each, Azul and Chetal played 2 games each and the remaining player played 1 game each. एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं. Who among the following was definitely not ranked in first in his or her group? Which of the following pair must have played against each other in the championship? Who won the championship? Who among the following did not play against Chitra in the championship? ठीक है. गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक स्टैंडर्ड सेट जहाँ पे अपने को 2 राउंड में डिवाइड करा हुआ है. पहला राउंड है पूल स्टेज का जहाँ पे ग्रुप स्टेजेस है. उन ग्रुप के जो विनर होंगे वो सेमीफाइनल में जाएंगे. उन 2 मैचेस के जो सेमीफाइनल 2 सेमीफाइनल हैं उनमें जो विनर है वो फाइनल में जाएगा और अकॉर्डिंगली विल गेट दी विनर. नॉकआउट मैचेस हो रहे हैं हर जगह पे जहाँ पे आप जैसे जैसे हारते जा रहे हो वैसे वैसे लोग निकलते जाएंगे. तो पहला मैच किसका किसका हो रहा है? रैंक 2 वाला मैच खेल रहा है किसी भी ग्रुप में रैंक 3 वाले के साथ. इनका जो विनर हो रहा है वो रैंक 1 वाले के साथ खेल रहा है. ठीक है. रैंक 2-3 का जो विनर होगा वो रैंक 1 वाले के साथ खेलेगा. अब इसमें से जो विनर होगा वो सेमीफाइनल में चला जाएगा. ठीक है. ऐसा. अब सेमीफाइनल में 2 मैचेस होने. ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी का जो सेमीफाइनल वाला बंदा है, ग्रुप सी वर्सेस ग्रुप डी वाले का जो सेमीफाइनल वाला बंदा है. इन दोनों का जो विनर होगा वो फाइनल में चला जाएगा. कुछ अपने को ऐसा आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे फिक्सचर्स आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. एकदम देखो ये पहले वाले पार्ट में, यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में पूरा क्लियरली डिफाइंड है. 2-3 आपस में मैच खेलेंगे. उनका जो विनर होगा 1 के साथ खेलेगा. उनका जो विनर होगा वो सेमीफाइनल में जाएगा. दोनों हर ग्रुप का सेमीफाइनलिस्ट आ जाएगा. ए और बी आपस में मैच करेंगे, सी और डी आपस में मैच करेंगे एंड इनके विनर्स फाइनल में मैच करेंगे. ठीक है. फिर आगे लिखा हुआ है द विनर ऑफ द, वो पूरी कहानी. इट इज नोन दैट चित्रा डिड नॉट विन द चैंपियनशिप. चित्रा है जो कि चैंपियनशिप नहीं जीत रही है. अरुणा डिड नॉट प्ले अगेंस्ट आरिफ. ब्रिज डिड नॉट प्ले अगेंस्ट Brinda. Aruna, Biju, Chitra and Dipen have played 3 games each. Azul and Chetan played 2 games each and the remaining player plays 1 game each. ठीक है. और पहले यहाँ पे टीम लिख देते कौन कौन है अपने पास. तो अपने को पता है कि ग्रुप ए है जहाँ पे कौन कौन है. अपने पास है अरुणा, ठीक है, अजुल और आरिफ. ऐसा. फिर ग्रुप बी है. उसमें कौन कौन है अपने पास? ग्रुप बी में अपने पास है ग्रुप बी में अपने पास है ब्रिज, Brinda और बीजू. ठीक है. Brinda, ब्रिज और बीजू. ठीक है. अब इनके जो विनर होंगे वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे. ठीक है. इन दोनों में क्या क्या अपने को पता है? अपने को पॉइंट नंबर 2 और 3 में ए और बी के बारे में काफ़ी कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है. तो पहले इन्हीं दोनों पे काम करते हैं. इसमें क्या पता है? अरुणा और बीजू ऐसे हैं जो 3-3 गेम खेलते हैं. अरुणा 3 गेम खेल रहा है, यहाँ जो भी है. बीजू भी 3 गेम खेल रहा है. ठीक. वाइल बीजू, चित्रा एंड दिपेन. ठीक है. एंड अजुल एंड चेतन प्लेड 2 गेम्स. अजुल ने 2 गेम खेली है एंड द रिमेनिंग प्लेयर प्लेड 1 गेम. इन्होंने भी 1 खेला है, इन्होंने भी 1 खेला, इन्होंने भी 1 खेला है. ठीक है. ये इन्होंने एक एक गेम खेली है सब. अच्छा. और इनका जो भी विनर होगा वो आगे सेमीफाइनल में चला जाएगा. अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना. हमें क्या पता है यहाँ पे रैंक 2 और रैंक 3 वाले बंदे हैं जो कि आपस में पहले राउंड में मैच खेलेंगे. यहाँ पे रैंक 2 और रैंक 3 कौन हो सकता है? क्या हम ये सोच सकते हैं?
या इनके अंदर सेमीफाइनल में कौन जा रहा है ये पता चलता है। ठीक है, ग्रुप बी में ध्यान दो तो बृंदा एक ऐसा है जो कि एक मैच खेल रहा है, ब्रिज भी एक मैच खेल रहा है, और बीजू है जो 3 मैच खेल रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो बीजू ऐसा होगा जो कि आगे गया होगा इस वाले ग्रुप से, इस वाले ग्रुप से जो आगे जा सकता है वो कौन है, बीजू। यानी कि सेमीफाइनल 1 में एक बंदा जो कि मैच खेलने वाला है उसका नाम है बीजू। ठीक है, और ये मैच किसके साथ होने वाला है, ए वाले की अगर ध्यान दे तो आरिफ, अजुल और अरुणा। आरिफ एक ही मैच खेला है तो आगे नहीं गया होगा, अजुल के 2 मैच और अरुणा के 3 मैच है। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा फिक्सचर्स देखना पड़ेगा। आरिफ का एक मैच कैसे रहा होगा, क्या वो यहाँ हो सकता है रैंक 2-3 में से, क्या वो रैंक 1-2-3 में से कुछ हो सकता है, समझना। अगर आरिफ रैंक 1 वाला होगा जो कि पॉसिबल लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा रहा होगा कि ये दोनों ऐसे होंगे जो कि 2-3 वाले में रहे होंगे। ठीक, अब ये समझना ये दोनों ऐसे जिन्होंने एक से ज़्यादा मैच खेला है, अरुणा और आजुल। अगर ये दोनों 2-3 वाले होते तो इनमें से कोई एक बंदा ऐसा होता जो कि हार गया होता और वो एलिमिनेट हो जाता, तो उनका आइडियली एक ही मैच दिखना चाहिए था। ठीक, पॉइंट समझना ना, ग्रुप ए के अंदर अपने को क्या पता है रैंक 2-3 आपस में मैच खेलेगा, तो इनमें से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो कि खाली एक मैच खेला होगा और दूसरा होगा जो एक से ज़्यादा मैच खेला होगा। ठीक, यानी कि ये वाले देखना, ये जो 2-3 है इन्होंने एक 3 मैच खेला, इन्होंने 2 मैच खेला है। अगर मैं रैंक 2 और रैंक 3 इन दोनों को दे देता हूँ तो प्रॉब्ली ऐसा होगा कि आरिफ रैंक 1 होना चाहिए था। ठीक, अब इसमें पंगा क्या है ना, इन दोनों में से कोई एक है जो कि प्रोसीड कर जाएगा और दूसरा हार जाएगा और वो बाहर हो जाएगा, तो उस केस में इन दोनों में से कोई एक टीम ऐसा होना चाहिए था जो कि एक ही मैच खेला होता। विच सीम्स यार ये तो केस मेरा बनते हुए नहीं दिख रहा है। बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा कि ये दोनों कौन है जो कि 2-3 वाले में नहीं थे, यानी कि इन्होंने मैच नंबर 1 नहीं खेला। तो मैच नंबर 1 किसने खेला होगा, आरिफ ने खेला होगा। अब आरिफ कौन रहा होगा मैच नंबर 1 के लिए, रैंक 2 और रैंक 3 में से कोई एक। ठीक, ये पॉइंट समझ आया। इसने मैच किसके साथ खेला, या तो अजुल के साथ या तो अरुणा के साथ। ठीक है, अब अरुणा ऐसा है जो कि 3 मैच खेलता है, वो 3 मैच कैसे खेला होगा, प्रॉब्ली एक मैच वो इसके साथ खेला आरिफ के साथ, ठीक है, दूसरा मैच वो अजुल के साथ खेला, ठीक है, और तीसरा मैच वो सेमीफाइनल में खेला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस केस में अजुल को हारना पड़ेगा और अजुल को बाहर होना पड़ेगा। अजुल को फिर एक ही मैच खेलना चाहिए, बट यहाँ पे तो अजुल ने 2 मैच खेला है। तो बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा कि अजुल कौन होना चाहिए, रैंक 2 और रैंक 3 वाला बंदा होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या रहा होगा, रैंक 2 रैंक 3 में से ये दोनों बंदे रहे होंगे जो कि आपस में मैच खेले पहला मैच। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बंदा है जो जीत गया और जीतने के बाद वो अरुणा के पास चला गया। अब इन दोनों में से जो जीता है वो कौन है, अजुल ही जीता है। ठीक है, इसीलिए अजुल के 2 मैच है। अब ये क्या किया, अरुणा के पास चला गया, तो अरुणा का फर्स्ट मैच है क्योंकि ये रैंक 1 है, तो उसका जो पहला मैच है वो इनके विनर्स के साथ हुआ एंड ये फिर आगे चला गया और आगे जाके मतलब ये यहाँ पे पहुंच गया और इसका यहाँ पे सेकंड मैच हो रहा है, इसका सेकंड मैच यहाँ पे हो रहा है। ठीक, यानी कि ये बंदा एक ऐसा होगा जो कि यहाँ से फिर जीत जाएगा, तब जाके इसका फाइनल में ये बन गया, यानी कि अरुणा होगा जो कि फाइनल में पहुंच गया होगा, जो कि इसका तीसरा मैच होना चाहिए। ठीक, ये दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा ना, अरुणा एक ऐसा था जिसने कि 3 मैच खेले, 3 में से पहला मैच इसने यहाँ पे खेला जो कि इन दोनों के विनर्स के साथ हुआ था, दूसरा मैच इसने यहाँ पे खेला, तीसरा मैच इसने यहाँ पे खेला, और ये दोनों ऐसे थे जो कि रैंक 2 और रैंक 3 वाले बंदे थे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 में अरुणा के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है कि अरुणा ने आरिफ के साथ मैच नहीं खेला है। वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि अरुणा और आरिफ इसलिए नहीं होगा बिकॉज आरिफ तो मैच हार गया था, साफ दिख रहा है। तो अरुणा ने मैच किसके साथ खेला होगा, अजुल के साथ ही खेला होगा, यानी कि इनका अगर हम बात करें तो पहला मैच किसके साथ हुआ है फॉर ग्रुप ए, ग्रुप ए का जो मैच हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा, वो हुआ होगा आरिफ वर्सेस अजुल, जिसमें से अजुल जीत गया, अजुल वर्सेस अरुणा, जिसमें से अरुणा जीत गया, एंड सो ऑन जाके आगे गया होगा। ठीक, फॉर ग्रुप ए आराम से अपने को क्लियर कट यहाँ पे दिखे कि भाई देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए। अरुणा की रैंक मिल गई, अजुल और आरिफ के बारे में वी कैन नॉट कमेंट, वो रैंक 2-3 में से कुछ भी हो सकता है। लेट्स थिंक ऑफ ग्रुप बी, ग्रुप बी के बंदे के बारे में। ग्रुप बी में इतना पता चला है कि बीजू एक ऐसा था जो कि 3 मैच खेला होगा। अब 3 मैच में से एक मैच है जो ग्रुप बी यहाँ पे बीजू खेला है, यानी कि ये यहाँ पे हार गया होगा। ठीक है, यानी कि ये इसका थर्ड मैच रहा होगा बीजू का, यानी कि जो बचे हुए 2 मैच इसने यहीं पे खेले होंगे। अब यहाँ पे 2 मैच कब खेलेगा, जब ये वाली रैंक का वो बंदा रहा होगा, यानी कि बीजू एक ऐसा रहा होगा जो कि रैंक 2 रैंक 3 वाला रहा होगा, जिसने कि पहला मैच ब्रिज के साथ खेला या बृंदा के साथ खेला,
जीत गया, बृंदा या बीजू को बाहर कर दिया, दूसरा मैच फिर इन दोनों में से किसी एक के साथ खेला और जीत गया, उनको बाहर करा और फिर आगे बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है, ब्रिज डिड नॉट प्ले अगेंस्ट बृंदा, ये तो साफ दिख रहा है कि ब्रिज और बृंदा आपस में नहीं खेलेंगे। अब इनकी रैंक क्या हो सकती है, ये रैंक 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली ये रैंक 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकता है। इनका फिक्सचर क्या होगा, ग्रुप बी का फिक्सचर कैसा होना चाहिए, ग्रुप बी का फिक्सचर होना चाहिए आपका कुछ ऐसा, यानी कि बीजू का पहला मैच हुआ किसके साथ, या तो बृंदा के साथ या तो ब्रिज के साथ। ठीक है, यहाँ पे अपन जगह बना लेते ताकि आपको थोड़ा समझ आए इफ यू आर गोइंग थ्रू द सॉल्यूशन पूरा। ठीक है, या तो ब्रिज के साथ हुआ होगा या तो बृंदा के साथ हुआ। ठीक, और बीजू जीत गया, बीजू का सेकंड मैच फिर हुआ, बीजू का सेकंड मैच उसके साथ हुआ, इन दोनों में से किसी एक के साथ, यानी कि ब्रिज या बृंदा में से किसी एक के साथ। ब्रिज फिर जीत गया, ब्रिज का तीसरा मैच यहाँ पे हुआ जो कि हार गया एंड ही गॉट एलिमिनेटेड। ठीक, फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी हमने निकाल दिया। सिमिलरली वी हैव टू आइडेंटिफाई फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। चलो इधर भी दिमाग लगाते हैं, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के बारे में भी सोचते हैं। ठीक, ग्रुप सी में कौन है अपने पास, ग्रुप सी में वी हैव चित्रा, चेतन एंड छवि। चित्रा, चेतन एंड छवि। ठीक, ग्रुप डी में अपने पास कौन है, डोना, सॉरी दिपेन, डोना एंड देव। दिपेन, डोना, ऐसा डबल एन है, ठीक है, एंड देव। ठीक, हमारे पास ये 3 कैरेक्टर ग्रुप डी में निकल गए। अब इनके बारे में भी क्या दिया हुआ था, ये तीनों ऐसे थे जो कि क्या करते हैं, कौन कौन सा नंबर ऑफ मैचेस खेलते हैं, इस पे दिमाग लगाते हैं, बिकॉज इनके बारे में भी दे रखा था ना। अरुण, बीजू, चित्रा एंड दिपेन प्लेड 3 गेम्स। ठीक है, चित्रा ने 3 गेम खेला है एंड दिपेन ऑल्सो प्लेड 3 गेम। ठीक है, अजुल, चेतन प्लेड 2 गेम्स। अजुल तो यहाँ पे मिल चुका है, चेतन ने 2 गेम खेला, वाइल रिमेनिंग प्लेड 1 गेम्स। ठीक है, 1 एंड ठीक। ऑल्सो पॉइंट नंबर 2 तो अभी रेलिवेंट नहीं है बिकॉज पॉइंट नंबर 2 हैड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए एंड बी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, तो वहाँ पे अपने को दिमाग नहीं लगाना है। चलो यहाँ पे ग्रुप सी में दिमाग लगाते हैं, ग्रुप सी में से और ग्रुप डी में से कौन क्वालिफाई करेगा। ग्रुप डी में से अपने को साफ दिखाई दे रहा है दिपेन वुड बी क्वालिफाइंग फॉर दी सेमीफाइनल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे सेमीफाइनल नंबर 2 के लिए यहाँ से दिपेन इज द फर्स्ट पर्सन हु इज क्वालिफाइंग एंड ही इज प्लेइंग अगेंस्ट हूम, नहीं पता, अभी ये निकालते हैं। वो साफ दिखाई दे रहा है दिपेन ने 1 से ज़्यादा मैच खेला हुआ है। अब ऐसा रहा होगा ना कि दिपेन ऐसा रहा होगा जैसे ग्रुप बी वाला केस है, सिमिलर केस रहा होगा। दिपेन ऐसा होगा जो कि रैंक 2, 3 में से कुछ एक रहा होगा, रैंक 2, रैंक 3 में से कोई एक। ठीक है, डोना क्या रही होगा, मतलब रहा होगा रैंक 1, 2 और 3 में से कोई एक। सिमिलरली देव के लिए भी हम ये कह सकते हैं रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 में से कोई एक। तो फॉर ग्रुप डी द फिक्सचर वुड हैव बीन, क्या हो सकते थे, ऐसा रहा होगा कि दिपेन ने पहला मैच खेला वर्सेस डोना और देव में से किसी एक के साथ, डोना या देव में से किसी एक के साथ, और ये जीत गया। ठीक है, दिपेन ने दूसरा मैच फिर खेला इन दोनों में से किसी एक के साथ, जो भी जैसा रैंक रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रैंक अपने को नहीं पता तो अभी यहाँ पे क्लियरली नहीं लिख पा रहे। ठीक है, दिपेन ने खेला होगा डोना और देव में से किसी एक के साथ। ठीक, यहाँ पे दिपेन जीत गया और दिपेन ने तीसरा मैच जाके अपना सेमीफाइनल में खेला एंड ही लॉस्ट, ऐसा। यानी कि यहाँ पे जो सी वाला कैरेक्टर आने वाला है वो है जो कि फाइनल में जाने वाला है। ठीक, मतलब अरुणा वुड बी प्लेइंग अगेंस्ट समवन हु इज कमिंग फ्रॉम ग्रुप सी, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक, अब ग्रुप सी पे दिमाग लगाते, ग्रुप सी पे अपने को क्या पता है, चित्रा 3 मैचेस खेली है, चेतन 2 मैच खेला है, छवि 1 मैच खेली है।
छवि कौन होने वाला है? छवि एक मैच खेली ना, तो छवि इज नॉट समवन जो कि रैंक 1 होगी, पॉसिबली यस हो भी सकता है, नहीं हो सकता। और चलो इसके बारे में सोचा जाए, इसका नंबर्स ग्रुप ए से मिलता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पे ग्रुप ए में भी ऐसा था ना, 3-2-1, यहाँ पे भी देखो 3-2-1 दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा अपन दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे छवि एक ऐसी है जो कि आगे नहीं गई होगी, ये तो पता है, बिकॉज ये एक ही मैच खेला है और ये बाहर हो गया, जो ये कैरेक्टर है छवि वाला। ठीक है, ये एक मैच खेली है, शी लॉस्ट इट, तो वो बाहर हो चुकी है। अब ऐसा हो सकता है कि ये रैंक 2-3 में से कुछ एक रही हो। ठीक, अच्छा, चेतन के बारे में क्या पता? चेतन ने एक से ज़्यादा मैच खेला है, यानी कि एक से ज़्यादा मैच खेलने का लॉजिक क्या होगा? वो यहाँ पे मैच खेला होगा, पहला मैच, दूसरा मैच यहाँ पे खेल सकता है क्या? अगर ये रैंक 1 होता, ऐसा समझना, अगर ये रैंक 1 होता चेतन, ये तो रैंक 1 नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है। सोचा जाए, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले छवि पे ही लगाते हैं, क्या छवि रैंक 1 हो सकती है? प्रॉब्ली यस दिख रहा है। उस केस में इन दोनों को 2-3 होना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम क्या, अगर ये दोनों 2-3 हैं, वही जो लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, छवि को अगर मैं रैंक 1 देता हूँ, ऐसा समझना, छवि को अगर रैंक 1 दूंगा तो इन दोनों को 2-3 देना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक जीत के आगे गया होगा और वो इसके साथ मैच खेला होगा, और कोई एक है जो बाहर हो गया होगा। उस केस में चित्रा और चेतन दोनों के लिए एक एक मैच दिखना चाहिए था, बट यहाँ पे तो यार एक से ज़्यादा मैच है। बाय दैट लॉजिक आई कंक्लूडेड कि छवि कैन नेवर बी ए रैंक 1 बंदा। ठीक है, छवि का रैंक क्या हो सकता था? रैंक 2 या रैंक 3। ठीक, ये अपने को छवि के लिए मिल गया, दिस इज फॉर छवि। अच्छा, अब छवि का मैच किसके साथ हुआ होगा? चित्रा के साथ, पॉसिबली यस, चेतन के साथ, पॉसिबली यस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, क्या चेतन को रैंक 1 दे सकता हूँ? अगर चेतन को रैंक 1 देता हूँ तो क्या रहा होगा? ये चित्रा रही होगी जो कि 2-3 में से कोई एक रही होगी। अब इसके साथ पंगा क्या है, यहाँ सही है, ये चेक करते हैं कि रैंक 2-3 ये रही होगी, इसका मैच छवि के साथ हुआ एंड ये जीत गई, फिर इसका मैच चेतन के साथ हुआ, ये जीत गई, और ये तीसरा मैच यहाँ पे लेके चली गई। तो यार ये तो 3 में तीसरा मैच यहाँ पे हार गई, तब भी उसके 3 ही मैच, इसके 3 से ज़्यादा मैच होने चाहिए थे। अब पंगा क्या है, यहाँ पे तो दोनों हारते हुए दिख रहे हैं ना। फिर से समझाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर चेतन रैंक 1 है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट चेतन इज समवन हु इज रैंक्ड 1। अगर चेतन रैंक 1 है तो मतलब चित्रा है जो रैंक 2-3 में से कोई एक रही होगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि पहला मैच चित्रा और छवि का हुआ जिसमें से चित्रा जीत गई। ठीक है, चित्रा का पहला मैच। दूसरा चित्रा और चेतन का हुआ जिसमें अगेन चित्रा जीत गई, 2 मैच। तीसरा मैच चित्रा ने यहाँ पे खेला जो कि हार गई, तो यहाँ पे दोनों सेमीफाइनलिस्ट हारे, तो आगे कौन जा रहा है? ऑल्सो चेतन। चेतन का भी 2 ही मैच मिल रहा है, और इस वाले लॉजिक से तो चेतन का अपने को एक ही मैच दिख रहा था। तो बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा कि चेतन कौन होगा? ऐसा जो कि रैंक 2 या रैंक 3 में से कोई एक होगा। ठीक, अब इसने पहला मैच यहाँ पे खेला और दूसरा मैच इसके साथ खेला, यानी कि रैंक 1 वाले के साथ, जो कि है चित्रा। अब ग्रुप सी का फिक्सचर क्या रहा होगा? ग्रुप सी के लिए अगर हम निकालें तो फिक्सचर रहा होगा कि पहला मैच छवि वर्सेस चेतन हुआ होगा, जिसमें चेतन जीत गया। ठीक, दूसरा मैच हुआ होगा चेतन वर्सेस चित्रा, जिसमें चित्रा जीत गई। ठीक, अब क्या हुआ देखो, इन दोनों का 2-2 मैचेस निकल गए, छवि का एक मैच निकल गया, यहाँ दिख रहा है। चित्रा का जो दूसरा मैच हुआ होगा यहाँ पे हुआ होगा, चित्रा का यहाँ पे हुआ दूसरा मैच जहाँ पे चित्रा जीत गई, एंड इसकी वजह से शी गॉट इनटू फाइनल, और यहाँ पे चित्रा ने गेम फाइनल एज अ फाइनलिस्ट खेली। और अगर ध्यान दो तो भाई अपने पास एक इन्फॉर्मेशन दी थी पॉइंट नंबर 1 में, विच सेज कि चित्रा डिड नॉट वन दी चैंपियनशिप, यानी कि चैंपियनशिप कौन जीता है? अरुणा जीती होगी। तो दिस इज हाउ वी फिगर्ड आउट दी एंटायर फिक्सचर्स एंड विनर पे अपन पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ पे पार्शियली यूनिक मिला, मतलब अपने को फिक्सचर्स तो मिल गया, अपने को विनर मिल गया, अपने को रैंक है जो कि यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रही है। लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है ऐसा कुछ जो कि अपने को इन गिवन इन्फॉर्मेशन से मिल सकता है क्या। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डेफिनेटली नॉट रैंक फर्स्ट इन हिज और हर ग्रुप। इनमें से कौन ऐसा जो कि फर्स्ट नहीं बन सकता? चित्रा। चित्रा तो रैंक 1 क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता। दीपेन, दीपेन दिख रहा है, देखो साफ साफ कि दीपेन कैन नेवर बी दी रैंक 1। दीपेन क्या हो सकता है? रैंक 2-3 में से कोई एक होना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर दीपेन मिला है। बाकी को चेक कर लेते हैं। अरुणा, अरुणा रैंक 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेटेड। ब्रिज, ब्रिज देखो पॉसिबली रैंक 1 हो सकता है ना, देखो रैंक 1, 2, 3 तीनों दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मस्ट हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन द चैंपियनशिप। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अगेंस्ट खेला है? ए अजुल और बिजू। अजुल का मैच बिजू के साथ नहीं पॉसिबल है बिकॉज अजुल यहीं पे एलिमिनेट हो गया, खत्म। ठीक है, देव एंड डोना। देव एंड डोना का मैच देखो मैंने यहाँ पे फिक्सचर्स में लिखा हुआ है, क्या हो रहा है क्या यहाँ पे तो वो दिख रहा है। दीपेन का मैच हो रहा है और इनका मैच, और इनका आपस में मैच कभी भी नहीं हो रहा है, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, डोना एंड चेतन। डोना का मैच चेतन के साथ नहीं हो रहा है, डोना तो सेमीफाइनल पे नहीं जा रही, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? चित्रा एंड दीपेन। देखो यहाँ पे दिख रहा है चित्रा और दीपेन का मैच हो रखा है, यहाँ पे अपने को साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वन द चैंपियनशिप। ये तो भाई अरुणा अपने को साफ साफ दिख रहा है कि अरुणा है जो कि चैंपियनशिप जीत गए। ऑप्शन नंबर डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले अगेंस्ट चित्रा इन द चैंपियनशिप। चित्रा के अगेंस्ट चैंपियनशिप में कौन नहीं खेलता है? अरुणा, यार ये तो फाइनल में पहुंचा है। चेतन, चेतन और चित्रा का मैच देखो यहाँ पे हाँ हुआ है, ये देखो ये वाले फिक्चर्स में दिख रहा है, ठीक है, चेतन एंड चित्रा का मैच, तो यानी कि ये भी खत्म ये भी खत्म। दीपेन, दीपेन का मैच हुआ है क्या चित्रा के साथ? देखो यहाँ पे हुआ है। ऑप्शन क्या होना चाहिए? बीजू, बिकॉज बीजू एक ऐसा था जो कि सेमीफाइनल, इधर वाले सेमीफाइनल से वो हार गया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी डी, ठीक है। सो आई वुड रेट इज एज अ मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला सेट, मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसको गेम्स एंड टूर्नामेंट में जिसकी थोड़ी एक्सपर्टीज है और फिक्चर्स अरेंज करना आता है, उसके लिए तो ये आसान था। बट ऑब्वियसली पेपर वाले फेज में अगर मैं बोलूँ तो इससे पहला वाला क्वेश्चन वॉज अ बिट ईजी, वो डीआई वाला पार्ट, और मतलब इस वाले स्लॉट में डीआई वाला पार्ट एंड दी अदर क्वेश्चन रेटिंग वाला, वो ज़्यादा आसानी से निकल सकता था। ये भी किया जा सकता था बट ये वही कर पाता जिसने पहले कभी इस टाइप के फिक्सचर्स वाले सेट कर रखे हैं। ऐसे देखा जाए तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान सा निकाल पाना। सो आई वुड रेट दिस एज अ मॉडरेट वाला सेट, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिस।